Hi everyone, we'll start noun from today. Since this is the first class of noun, we'll cover the basics of noun, types of noun and many other things. See, जब हम noun को पढ़ेंगे तो पहले तो हम book के according जो noun है वो सब समझेंगे, but besides we'll deal with the practical aspects of noun as well, right? चलिए start करते हैं. सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में नाउन की कोर डेफिनेशन गिवन है एंड ऑन द राइट साइड ग्रामेटिकल रोल ऑफ नाउन इज गिवन. यही मैं आपसे कह रहा था कि हम सिर्फ नाउन को बुक्स में जो गिवन है सिर्फ वैसे ही नहीं देखेंगे, हम उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उनको भी कवर करेंगे. कोर डेफिनेशन आप सबने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, हम उसे रिवाइज कर लेते हैं. नाउन इज व्हाट? It is a part of speech that names a person, place, thing or idea. यही noun की definition है. It's a part of speech that means a person, place, thing or idea. If I say Dr. Smith is a person, London a place, violin a thing, a kind of musical instrument and freedom an idea. और अगर हम ग्रामेटिकल रोल या ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स की बात करें नाउन की, तो विद इन अ सेंटेंस नाउन्स आर हाईली वर्सेटाइल. किसी सेंटेंस में नाउन्स तो उसका उसका कुछ मतलब ही अलग है, फिर वो बहुत वर्सेटाइल है. कैसे? दे फंक्शन डायनेमिकली एज सब्जेक्ट्स. यस, एक पहली प्रॉपर्टी नाउन की ये है दैट इन अ सेंटेंस nouns function as subjects that perform actions, objects that receive actions और अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ये रोल हो सकता है किसी सेंटेंस में एक नाउन का. क्या? Noun can work as a subject of a sentence that can perform actions. Noun can act as an object of a sentence that can be the receiver of actions. And noun can also be the complement of subject. Fine. Example के तौर पे देखिए, the author wrote a beautiful story with nature as its central topic. मतलब author ने एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी लिखी जिसका टॉपिक क्या था? नेचर. In this sentence, author is a noun, story is a noun, nature is also a noun. Right? If I talk about author, author is playing the role of subject here. Story is playing the role of object here. Nature is what? Nature is an abstract noun here. Fine? हाँ, तो नाउन का मैंने कोर डेफिनेशन आपको बता दिया. सेंटेंस में नाउन का क्या रोल होता है वो मैंने आपको बता दिया. We'll now start with the types of noun. Before we begin, देखिए, अगर कोई आपसे कहता है that there are two types of noun, he or she may be right. अगर वो कह रहा है कि दो टाइप के नाउन है तो he or she means countable nouns and uncountable nouns. If someone says there are 5 kinds of noun, वो भी ठीक है. उसके कहने के मुताबिक proper noun, common noun, material noun, abstract noun and collective nouns. So 5 types of noun हो गए. And if somebody says there are 9 types of noun, that person is also right. क्योंकि वो इन 5 types of noun के साथ साथ बोलता है concrete noun at number 6, countable noun at number 7, uncountable noun at number 8 and compound noun at number 9. तो ये तीनों ही डायलॉग्स बिल्कुल ठीक है, तीनों ही नरेटिव्स ठीक हैं. पहला, if somebody says there are two types of nouns, तो उसका कहना है countable nouns and uncountable nouns. If somebody says there are 5 types of noun, तो उसका कहना है common noun, proper noun, material noun, collective noun and abstract noun. और अगर कोई कहता there are 9 types of noun, तो ये जो 5 types मैंने बताए आपको, इसके साथ साथ उसका बोलना है concrete noun होता है, countable noun, uncountable noun and what? Compound nouns, right? Modern English में अब 9 types of nouns को पढ़ाया जाता है. So let's begin. Common nouns versus proper nouns. देखिए, जिन nouns का आपस में strong relation है या strong fight है, हम उन्हें साथ साथ पढ़ेंगे. हमने common और proper के साथ collectives को नहीं रखा because commons and propers have no direct connections with collective nouns. Yes, सब connected हैं लेकिन versus वाला connection नहीं है. फाइन, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स का या प्रॉपर नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स का. यस, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो हम इन्हें समझते हैं. सी, द वेरी फर्स्ट नाउन इज कॉमन फॉलोड बाय इट्स प्रॉपर वर्जन. कॉमन नाउन्स क्या है? कॉमन नाउन्स आर जेनेरिक नेम्स फॉर एलिमेंट्स विद इन अ कैटेगरी.
मतलब किसी कैटेगरी में जो चीजें हैं उनका जो जनरल नाम हो सकता है, जैसे आपने ह्यूमंस बोल दिया, बर्ड्स बोल दिया, एनिमल्स बोल दिया, बुक्स बोल दिया, राइट, यस, चेयर्स बोल दिया, तो ये कॉमन, फर्नीचर बोल दिया, ये जेनेरिक नेम्स हैं ऑफ आइटम्स विद इन अ कैटेगरी. दे डू नॉट रेफर टू अ स्पेसिफिक यूनिक entity and are only capitalized at the start of a sentence. ये भी एक बड़ी प्रॉपर्टी है कि कॉमन नाउन्स को कैपिटल फॉर्म में तभी हम लिखते हैं when they come in the very beginning of a sentence, otherwise not. जबकि प्रॉपर नाउन में साफ साफ लिखा है दैट दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड wherever they are used in a sentence, चाहे वो बिगिनिंग में हो, एंड में हो, मिडिल ऑफ अ सेंटेंस में हो, राइट. हाँ, सो कॉमन नाउन्स जनरल नेम्स की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंट्री, कंट्री में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब आ सकती. कंट्री इज अ कॉमन नाउन. अगर हम कंट्री के प्लेस पे इंडिया बोल दें, इट विल बी अ प्रॉपर नाउन. रिवर अ कॉमन नाउन. एक्सप्लोरर कैन बी एनी पर्सन. टैबलेट, लैंग्वेज, यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ दीज आर कॉमन नाउन्स. अब सभी को नाम दे दीजिए, सबको अपना अपना एक नाम दे दीजिए, ये क्या बन जाएंगे? प्रॉपर नाउन्स. व्हाई? बिकॉज प्रॉपर नाउन्स रिफर टू हाईली स्पेसिफिक singular individuals, geographic locations, corporate brands और events. Proper nouns क्या है? Specific names दे देते हैं, फिर चाहे वो individuals के नाम हो, geographical locations, let's say places के नाम हो, corporate brands मतलब companies के नाम हो. If you say company, it's a common noun. If you say Adani Group, it's a proper noun. If you say Vedanta Group, it's a proper noun. Tata, proper noun. Suzuki, proper noun. और इवेंट्स फाइन, दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज. ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन्स चाहे जिसकी भी बात करें, प्लेसेस की, पर्सन की, आइटम्स की, लोकेशंस की, उनका नाम अगर दे दिया गया है तो वो प्रॉपर है एंड दे आर ऑलवेज कैपिटलाइज. स्विट्जरलैंड, अमेजॉन, इंडिया गेट, रेड सी, जेम्स, all of these are proper nouns. All of these are what? Proper nouns. Fine. तो अगर आपने एक जनरल टाइटल दिया है तो वो कॉमन नाउन हो सकता है. एंड इफ यू हैव गिवन एन इंडिविजुअल नेम टू समवन और समथिंग, इट इज अ प्रॉपर नाउन, नो डाउट अबाउट इट. मूविंग ऑन, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अभी मैंने बोला ना देयर आर 9 टाइप्स ऑफ नाउन्स. तो देखिए कॉमन और प्रॉपर का कनेक्शन है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का कनेक्शन. कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का कनेक्शन है. फाइन. कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? कॉन्क्रीट सेंसरी है और एब्स्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कंसेप्चुअल है. कॉन्क्रीट नाउन्स का एक फिजिकल शेप, डिजाइन, फिजिकल आइडेंटिटी हो सकती है, फिजिकल लुक हो सकता है, whereas abstract nouns are always spiritual और conceptual. देखिए, concrete nouns represent tangible physical matters. Tangible मतलब that which can be touched, जिनको छुआ जा सकता है. They are entities that you can interact with. आप इनसे interact कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, साथ में बैठ सकते हैं, जा सकते हैं. Using at least one of your 5 core senses: sight, touch, sound, smell और taste. मतलब कॉन्क्रीट नाउन्स वो हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने 5 कोर सेंसेस में से किसी का यूज करके. चाहे आप उसे देख सकते हो. इफ आई से ताजमहल इज अ बिल्डिंग, इफ आई से मून इज अ स्टार, आप उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं. इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन. इफ आई से टेबल, यू कैन परसीव इट बाय टच. इट्स अ कॉन्क्रीट नाउन. साउंड, कोई भी म्यूजिक आप सुन रहे हो, कोई भी साउंड आ रहा हो, वो भी कॉन्क्रीट नाउन में. स्मेल, स्मेल, कोई भी फूड स्मेल कर रहा हो, वो भी कॉन्क्रीट नाउन है. टेस्ट, टेस्ट, सॉल्ट इज अ कॉन्क्रीट नाउन. फाइन. ये देखिए ना, एप्पल हो गया, डॉग हो गया, राइट. एप्पल को क्या आप टेस्ट से समझ सकते हैं, डॉग को टच कर सकते हैं, परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं, ग्रेनाइट को भी छू के देख सकते हैं, आंखों से भी देख सकते हैं, ठंडर हवा को महसूस कर सकते हैं, कॉफी को चख सकते हैं, टेबल को टच कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर concrete nouns. And if I talk about abstract nouns, they are intangible properties, emotional states, mental concepts, stages of life or general values that have no physical presence. Abstract nouns क्या है? Intangible items हैं
कंसेप्चुअल हैं, स्पिरिचुअल हैं, इमोशनल स्टेट्स हो सकती हैं, दे कैन बी मेंटल कॉन्सेप्ट, स्टेजेस ऑफ लाइफ, जनरल वैल्यूज. इफ आई से जनरल वैल्यूज मींस ऑनेस्टी, क्रूअलिटी, जेनरोसिटी, ये वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं. इमोशनल स्टेट्स, लव, अटैचमेंट, हेट, इमोशनल स्टेट्स हो गई. हाँ, अगर मैं स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात करूं तो यूथ, childhood, matrimony, parenthood, motherhood, these are the stages of life. आप बच्चे को छू सकते हैं, बच्चा tangible है, concrete noun है, लेकिन क्या बचपन को आप छू सकते हैं? Can you touch childhood? No, it's intangible, it's a concept. The child is a concrete noun, whereas childhood is an abstract noun. Neighbor एक बंदा हो सकता है, आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, you can interact with that person, तो वो concrete noun है. पर neighborhood, पड़ोस, it's an abstract noun. Fine, हाँ. जैसे for example courage, साहस, loyalty, nostalgia, मतलब nostalgia घर की याद आ रही, लगाव जिसको कह सकते हैं, emotional state में है. justice, justice एक प्रकार से concept में आता है. philosophy, childhood, brotherhood, motherhood, harmony, care, peace, love, hate, attachment, cowardice, cleverness, all of these are abstract nouns. ये ideas हैं, properties हैं, habits हैं, behavior हैं, nature हैं, concepts हैं, values हैं, emotional states हैं, stages of lives हैं, totally intangible. See, abstract means something that cannot be touched. Abstract का मतलब ही होता है that which is no physical presence at all. राइट, तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का डिफरेंस समझ में आया. कॉन्क्रीट में एक बात बहुत अच्छे से समझिए, दैट विंड इज ऑल्सो कॉन्क्रीट. भले ही आप विंड को देख नहीं सकते, बट यू कैन परसीव इट, आप उसे महसूस कर सकते हैं. राइट, हाँ, आप उसे कोई भी स्मेल है, कोई भी गंध है, आप उसे नाक से सूंघ सकते हैं. इट इज ऑल्सो अ कॉन्क्रीट नाउन. फाइन, यस. मूविंग ऑन, कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं. कलेक्टिव नाउन्स क्या है? कलेक्शन ऑफ पीपल, collection of animals, collection of non-living things. If I say collection of people, let's say there are 15 to 20 players and they may form a team. There are 100 to 200 students and they may form a class. Fine, yes. तो ये collective nouns हैं लोगों के. And if there are hundreds of animals, grazing animals, they form a herd. तो वो कलेक्टिव नाउन एनिमल्स का हो गया. इफ यू सी dozens of goats, so they may form a flock of goats. राइट, बहुत सारी आपने बीज देख ली, तो यू कैन सी अ हाइव ऑफ बीज. हाँ, इसी तरीके से अगर आपने नॉन लिविंग आइटम्स को देखा, लेट्स से बुक्स बहुत सारी हैं कहीं पर, इट कैन बी अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. फाइन, यस. बहुत सारी कीज कहीं पे रखी हैं, सो यू कैन से अ बंच ऑफ कीज, या फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ सूट ऑफ कार्ड्स. फाइन, यस. अ कन्वॉय ऑफ व्हीकल्स. फाइन, तो कलेक्टिव नाउन्स क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड कलेक्शन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. साफ साफ लिखा है. ह्यूमन ग्रुप्स की अगर हम बात करें, these donate standard assemblies, professional organizations, or social groups of people working toward a unified goal. A jury, a staff, a team. ये humans का ग्रुप हो गया, उसका कलेक्टिव नाउन हो गया. एनिमल्स में अगर हम देखें, प्राइड ऑफ लॉयंस, लॉयंस का एक ग्रुप, उसको हम प्राइड बोलते हैं. स्वार्म ऑफ बीज, बीज के ग्रुप को स्वार्म बोल सकते हैं. स्कूल ऑफ फिश, फिश के ग्रुप के लिए हम स्कूल यूज करते हैं. ये एनिमल्स का ग्रुप हो गया. इन एनिमेट कलेक्शंस का मतलब ही नॉन लिविंग आइटम से है, लाइक अ फ्लीट ऑफ शिप्स, बंच ऑफ कीज, या अ डेक ऑफ कार्ड्स. नॉन लिविंग फिजिकल आइटम्स. फाइन, यस. अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को समझ लिया है, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन को कर लिया, एंड वी आर आल्सो डन विद कलेक्टिव नाउन्स. मूविंग ऑन, अब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को समझते हैं. वेरी सिंपल. नाउन्स विच कैन बी इजीली काउंटेड, वो काउंटेबल नाउन्स है. एंड नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड एट ऑल,
जिसमें हम 1 2 3 4 नहीं बोल सकते. Nouns which do not have any scope of being counted, such nouns are uncountable nouns. Fine. Yes, countable nouns को देखिए. Nouns that exist as distinct singular units. वो nouns जो singular units के तौर पे exist करते हैं and can be manifold, can be multiple in numbers. ये देखिए, can be numbered directly or can take indefinite articles like a or an and easily form their plural forms. ऐसे nouns जो singular units में होते हैं, जिनको नंबर किया जा सकता है, काउंट कर सकते हैं, जिनके पहले we can easily put articles like a or an or numerals like 1 2 3 4 all, some, few, many, and they can easily be converted into their plural forms. उनको हम क्या बोल सकते हैं? Countable nouns बोल सकते हैं. Here are the examples. 1 cup, countable singular forms में, and if you say 3 cups, plural form में countable हो गया. An idea, several ideas, इधर countable है singular और इधर है plural form में. If I say a scientist, singular countable noun, and if I say some scientist, plural countable noun. Fine? Yes. Uncountable nouns की बात करें, mass concepts, materials, substances that cannot be split into individual units. मतलब ऐसी चीजें जिनको पार्ट्स में नहीं तोड़ा जा सकता, राइट. मटेरियल जिनको ब्रेक नहीं कर सकते, या कॉन्सेप्ट जिनका कोई फिजिकल ब्रेकअप नहीं हो सकता, जिनकी इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं हो सकती, जिन्हें गिने जाने का कोई स्कोप नहीं. लेट्स से ब्लड, खून को आप नहीं गिन सकते. यस, ब्लड वेसल्स को काउंट कर सकते हैं. हाँ, यस, और ब्लड कंटेनर को काउंट कर सकते हैं. ऐसे ही वाटर कैन नॉट बी काउंटेड. यस, यू कैन काउंट अ वाटर बॉटल. यस, यू कैन काउंट अ पॉन्ड विच इज फिल्ड विद वाटर, बट यू कैन नॉट काउंट वाटर डायरेक्टली. इफ आई से सिल्वर, तो आप सिल्वर को नहीं काउंट कर सकते. यस, सिल्वर की बनी हुई कोई चेन है, उसको आप जरूर काउंट कर सकते हैं. फाइन. यस, यू कैन नॉट काउंट आयरन, लोहा. यस, आयरन का रॉड अगर है तो उसको आप काउंट कर सकते हैं. तो नाउन्स जिनमें काउंट किए जाने का कोई स्कोप ही नहीं है, उन नाउन्स को हम कैसा बोलते हैं? हम उन्हें काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. वेरी सिंपल. फाइन. यस, वन सेक. Yes. They require dedicated units of measurement to be counted. Yes. अगर हम अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट करने के बारे में सोचे भी तो डेडिकेटेड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होगा, तब जाके हम काउंट करेंगे. लेट्स से वाटर, आप वाटर को तो नहीं काउंट कर सकते, और अगर काउंट करने का बड़ा मन ही है तो आप उसे ग्लासेस ऑफ वाटर बोलिए तो आप काउंट कर सकते हैं. सिमिलरली सैंड को आप नहीं काउंट कर सकते, सैंड को आप नहीं काउंट कर सकते. हाँ, उसका एक ढेर बना दीजिए तो ढेर गिन सकते हैं. ऐसे ही और बहुत से ढेर बना दीजिए तो फिर आप ढेर को गिन सकते हैं. Luggage, you cannot count luggage. Yes, a bag of luggage can be counted. Similarly, advice is also an uncountable noun which cannot be counted. हाँ, word of advice, piece of advice बोलेंगे तो काउंट कर लेंगे. ऐसे ही सैंड, सैंड नहीं गिन सकते. हाँ, पार्टिकल्स ऑफ सैंड अगर बोले तो वो काउंटेबल हो सकते हैं. ब्रेड नहीं गिन सकते, बट स्लाइसेस ऑफ ब्रेड अगर कर देंगे तो उसे काउंट कर लेंगे. So uncountable nouns are those which can either not be counted, और अगर काउंट किया भी जा सकता है तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका होगा. थ्रू दैट स्पेसिफिक वेज हम उन्हें काउंट कर सकेंगे. फाइन. हाँ, आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा. यस, आगे बढ़ते हैं और हम कंपाउंड नाउन्स की तरफ चलते हैं. वी हैव डन 8 टाइप्स ऑफ नाउन. We have done with 8 types of noun, which means अब हम आज के सेशन के लास्ट नाउन को पढ़ेंगे और उसके बाद we'll do a quick revision of all the we have done so far, right? Compound nouns, as the name suggests, compound का मतलब है something that has many parts. जो सिंगल नहीं है, जो कई पार्ट्स में है, वो कंपाउंड है. फाइन. यस, कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स हैं जो 2-3 पार्ट से मिलके बनते हैं. जैसे सनफ्लावर को देखिए, इसमें सन है और फ्लावर है.
टूथपेस्ट को देखिए, टूथ है और पेस्ट है, तो ये एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन तीन तरीके से देख सकते हैं, क्लोज्ड कंपाउंड्स, हाइफनेटेड कंपाउंड्स एंड ओपन कंपाउंड्स। क्लोज्ड कंपाउंड्स में दोनों ही वर्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड होंगे, सिंगल वर्ड के जैसे नजर आएंगे आपको, राइट। और अगर हाइफनेटेड कंपाउंड्स हैं तो वहां मल्टीपल वर्ड्स में के बीच में हाइफन लगा हुआ होगा। एंड इफ दे आर ओपन कंपाउंड्स तो वो दोनों ही वर्ड्स अलग अलग होंगे। इफ आई से चीफ मिनिस्टर, चीफ minister, it is a compound noun and it is an open compound noun. Chief अलग है, minister अलग है, fine. But if I say editor in chief, if I say editor in chief, तो editor in chief is what? It is a hyphenated compound noun, क्योंकि इसमें multiple words के बीच में क्या आ रहा है? हाइफन लगा हुआ है, fine, yes. सो क्लोज्ड कंपाउंड्स वो हो गए जिसमें मल्टीपल वर्ड्स एक ही में अटैच्ड हैं, सिंगल वर्ड फॉर्म कर रहे हैं, टू डिस्टिंक्ट बेस वर्ड्स fused together perfectly into a single word with no spaces. Mark it, with no spaces. ये closed compounds हो गए, fine, yes. और जैसे watermelon, 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 yes, it is a closed compound. Muskmelon, fine, huh. But if we say bottle guard, so it's an open compound now, fine. Hyphenated mother-in-law, self-esteem, editor-in-chief, brother-in-law, sister-in-law, all these are hyphenated compounds. Multiple words unified logically by hyphens to act as a singular structural noun. Open compounds, separate words that retain an orthographic space but possess a singular definition. Separate ही रहेंगे, आइसक्रीम है, पोस्ट ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, फाइन, ऑल ऑफ दीज आर ओपन कंपाउंड नाउन्स। अब हमने पूरा आज का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। In the next 5 minutes, we'll do a quick reference of all that we have learned so far. Find common versus proper, general items versus highly specific capital letters. हाँ, common क्या है, general है, proper क्या है, highly specific है। City is common, Tokyo is proper. Company is common, Google is proper. Similarly, concrete and abstract. जिसका physical sensory items है वो concrete है, जो इमोशनल एंड मेंटल आइडियाज की बात करेगा वो एब्स्ट्रैक्ट है। परफ्यूम कॉन्क्रीट है, वॉलेन कॉन्क्रीट है, जस्टिस एंड सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट है। जस्टिस को नहीं आप देख सकते, समझ रहे हैं, इसे स्मेल भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते। हाँ, जज को देख सकते, जज कॉन्क्रीट हो सकता है, फाइन। काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल, इंडिविजुअल आइटम यूनिट्स वर्सेस मैसिव कलेक्टिव कॉन्सेप्ट्स। जिन्हें गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, और जब सब मिला करके एक सिंगल यूनिट हो गया वो अनकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल बुक, एप्पल, ये काउंटेबल है, मिल्क, वेदर, लगेज, ये अनकाउंटेबल है। कलेक्टिव नाउन, सिंगल टर्म्स फॉर इंटीग्रेटेड ग्रुप्स ऑफ थिंग्स और पीपल, लाइक jury of judges, family of members, crowd of people, herd of animals, panel of experts. Compound nouns, nouns created by combining distinct words, अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करके जो नाउन्स बन गए हैं वो कंपाउंड नाउन्स हो जाएंगे, लाइक टूथपेस्ट, चेक इन, लिविंग रूम, डाइनिंग हॉल, डाइनिंग टेबल, ऑल ऑफ दीज, फाइन। मुझे उम्मीद है आपको नाउन का ये फर्स्ट लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।